Assalamualaikum everyone. This is a recorded lecture on state chart diagrams. I'm uploading this as compensation for one of our missed online lectures this Friday, which was supposed to be the last lecture in our SDA lecture series. Already uploaded lectures on design pattern, which were scheduled for this Wednesday. Unfortunately, none attended those lectures on Wednesday due to lab exams or whatever uh, other reasons. The lecture outline is as follows. We'll understand what state chart diagrams are. We'll cover core UML notations and elements used to model the state chart diagrams. We'll discuss what purpose state chart diagrams basically serve in the larger context of software design. Uh, what are composite in different states? We examine events which basically trigger state changes or transitions. And we'll conclude our lecture with some working examples and scenarios. ठीक है ना स्टेट चार्ट डायग्राम्स को स्टेट मशीन डायग्राम्स भी मुख्तलिफ में मेंशन किया है ठीक है तो स्टेट चार्ट और स्टेट मशीन डायग्राम्स basically intend to model life cycle of an object within an object oriented system ठीक है ना within a system state chart diagrams basically show or identify all the possible states for any certain object and what events and actions within the system trigger uh, that object to change its state from one to another. You know, what are the possible uh, uh, set of states for any certain object and what actions or events trigger or transitions from one state to another. Okay, no? This is basically the philosophy behind the state chart diagrams. They'll try to define state chart diagram basically define life cycle of an object within a system. ठीक है ना what set of states that object what are the set of states for that object and how that object how that certain object changes its state or behavior across different use cases and across different scenarios within that system and what are those events and actions exact events and actions which trigger those state changes which forces basically the object to change its state from one to another ठीक है ना let's say for example a character in a game could be for example running could be standing still could be idle could be fighting could be driving a vehicle could be swimming so these are different states that certain object could be in within that context or within that system. For example, in an e-commerce website or e-commerce application context, an order at certain time could be placed, could be verified, confirmed, or rejected, or could be packaged, could be delivered, could be completed. So these are different states an order could be in. ठीक है ना? A ride in a ride-hailing system could be booked ठीक है ना could be completed. These are different states that object could be within within that context or that within that domain. And what are those events or actions which basically trigger those state changes for a certain object? ठीक है ना? There's another example in our slides that, for example, an ATM card could be in different states within an ATM application. ठीक है ना? ATM card in your pocket or in your wallet is idle, basically, let's say. ठीक है? Uh, once you choose to insert that card in a machine, that card changes its state from being idle to inserted. ठीक है ना? There's a certain event or action triggered that change. ठीक है ना? You chose to walk to a machine and insert your card. So that event or that action triggered this transition. The state of the card changed from idle to being inserted.
Now a card reader picks that card and card reader verifies its validity. Okay. Once its validity has been verified, the inserted card would change its state from being inserted to verified. Now it's a verified card. Okay. Once you complete your transaction, the machine will eject your card back. Okay. Now the card, you can say, is ejected, or you try your pin multiple times, or whatever, for whatever reason the machine choose to block your card, or the banking system choose to block your card. So your card can certain there are certain defined behaviors or actions which can trigger a card's state from being inserted or being ejected or being idle to blocked. Okay. So basically, state chart show how an object's behavior changes across multiple executions, multiple use cases. Okay, na? You can use the state chart diagrams hand in hand with sequence diagrams, basically. Sequence diagrams identify for a certain use case, what are the participating objects, and how basically sequence diagram model interaction between those objects, taken entire interaction between those objects for a certain use case, for a certain feature in the system. Again, you can use state chart diagrams and in end with sequence diagrams to further all those part for to model life cycles for all those participating objects within that interaction or within that scenario. As a layman example, we're starting with a very simple, very basic, very easy to relate layman example. Like for example, an undergraduate student, okay, at one time could be in all these possible states at a time. It could be at all these possible states basically. These are all possible states for that undergrad student. Okay. The student could be a freshman, could be a sophomore, could be a junior, could be a senior. There's certain event or certain action which changes students' state from being a fisherman to a sophomore. That event basically in this context is a time-bound event. Okay? Once the student completes for let's say a year, let's say whatever the uh, time scale in this context is, ठीक है ना, एक साल पूरा होने के बाद वो फ्रेशमैन नहीं रहेगा, तो जो जो ही एक साल पूरा हो गया तो उसको आप सॉफ्टमोर कह रहे हैं, ठीक है ना, या 2 साल पूरा हो गया उसको आप सॉफ्टमोर कह रहे हैं, ठीक है। तो एक साल के बाद वो फ्रेशमैन नहीं रहेगा, वो सॉफ्टमोर रहेगा, तो डेट क्या कहते हैं टाइम, यहाँ पे जो एक्शन है, जो इवेंट है, वो एक टाइम बाउंड इवेंट है कि इस टाइम सर्टेन टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद द स्टेट चेंज इज बेसिकली ट्रिगर्ड, ठीक है ना। So for the undergrad student is the object in this context, and these are all the possible states this object could be within this context or domain. Okay, and these are basically the uh, events which trigger those state changes. Okay, in this context, these events are time-bound events. Once the year is completed, it would no longer be a freshman. It changes the object will change its state from being freshman to a sophomore. Okay. Another example, let's say a library object. Book object in a library system context could be in different states at a time. If it's either available on shelves, it's either reserved by a member, taken, it's either been borrowed by a member, it has been returned, or it is available again, let's say. This is a life cycle basically of a book object within the system. Taken. And these are all the possible states this particular object could be in this context or in this uh, system or domain. Again, a book in a library context can either be available, can be reserved, can be booked, borrowed, can be returned. So these all states, this object basically does not change its state in isolation. There are some events or actions basically which transition those states. Okay.
The state chart diagrams basically try to model life cycle of any object within a system. Okay? What are the possible states for this for those for that particular object, and what are the events basically which trigger those state transitions. Because so transitions are triggered by user actions, yeah. Reserving, borrowing, returning. These are user actions which basically trigger those transitions in this context. And uh, it's a simple state chart life cycle for an order object basically. Okay, order is just created. When you place an order, so this order is just created. Okay, it could be in a shipping state, could be delivered, and it could be closed, or it could be cancelled. These are all the possible states of an order object could be at a time. Okay, so in this is simple state chart diagram. हमने कोई अभी तक notations या symbols की बात नहीं की है, लेकिन you can see कि हम यही बात कह रहे हैं कि state chart diagram basically tries to model a life cycle of an object. So the object in question in this slide is order in an e-commercing context. The order, you can see the life cycle perspective. Yeah, जब हम life cycle की बात कर रहे हैं तो our life cycle would have a starting point with an ending point and with some intermediate states. So the starting or initial state for an order is created. Okay? From created, it can change its state to being cancelled or being shipped. Okay? If it's shipped, then it changes state from being created to shipping. From shipping, it changes state from being shipping to delivered. Okay? So, in these state changes are triggered by actions or events within the system. Okay? The actions or events could be system calls, could be functions calls, could be outside signals from other objects, could be a user actions basically. And another powerful feature of an state chart diagram is you can model state dependent behavior for objects. You can not only the life cycle of an object and what events basically trigger transition from one state to another for objects, what state dependent behaviors for each objects are basically. The example shown in the slide shows let's say your keyboard can be in a default state or a caps lock state. Okay? It could be if it's in a default state, it will behave differently when I press A or C or whatever key in the keyboard. Okay? If I press some alphabet, it will exhibit a different behavior when it's in the default state uh, from when it's in caps lock state. ठीक है, जब वो caps lock state में है तो मैं कोई alphabet press करूंगा इस keyboard पे तो it would have a different result and a different behavior. So this difference in the outcome or output of the same action, ठीक है ना, user same action कर रहा है ना, मैं as a end user of this keyboard is ठीक है, same ही action कर रहा हूँ, मैं same A press कर रहा हूँ अपने keyboard पे, लेकिन keyboard is showing a different outcome when it's in a default state and a different outcome when it's in the caps lock state. So uh, you can model ठीक है ना, one of the most powerful basically features of a state chart diagram is you can model state dependent behaviors for your objects in the system. ठीक है ना, so the character in your game behaves differently when I send the command for jump. Let's say when I say jump, you can if it's in the running state or is in the swimming state, ठीक है ना, or driving a vehicle, the character is driving a vehicle, it will behave differently to that command. ठीक है, the jump command would not result
in the same outcome every time for every state for that character. ठीक है? Let's say you are playing a YouTube video. The video is can be in different states. It's either playing, it's either stopped, it's either paused, ठीक है? Or it's either buffering, ठीक है ना? When I press the uh, space key in my keyboard, which is the button for pause and play in the YouTube context, ठीक है? If the video is in buffering state, ठीक है ना? It would behave differently when I press the space key. ठीक है ना? It would do nothing. ठीक है? If it's in the play state, when I press the space key, it will stop. It will pause basically. When it's if it's in the paused state, and I press the space key, it transition the video's status from being state from being paused to play. ठीक है ना? So it becomes the play button when the video is paused. It becomes the pause button when the video is playing. It does nothing when the video is buffering, basically. These are state-dependent behaviors of the same actions. You can model state-dependent behaviors for your objects in the system. We've discussed this, okay, the sequence diagram, how you can use state chart sequence diagrams end and end in the previous slide. So this may be the redundant slide, the same slide again. So these are redundant slides we can skip through. The elements in a state chart diagrams are, there are three basically core elements: states, transitions, and events. Okay? These are the three core elements we would use to model state chart diagrams, UML state chart diagrams. A state is basically a condition or a situation in which an object could be during in its life cycle. Okay? A state is a condition or either a situation in which any particular object could be in its entire life cycle. Okay? Let's say a invoice could be in the paid state or unpaid states or rejected state. Again, a car could be stand still. It could be moving forward, or it could be moving in reverse. Okay? These are different states that particular object could be at a time. Okay? A state mean a condition basically, or a situation in which that object is in that particular time. ठीक है ना? किसी एक particular time वो किसी एक certain situation या सबसे condition को satisfy कर रहा है. ठीक है? You can the same use this rectangle symbol in your state chart diagrams to model states. ठीक है ना? The UML notation for states in a state chart diagram is this basically rectangle symbol. ठीक है? You can you can further compartmentalize your state chart, state symbols in your state chart diagrams. ठीक है ना? For states, we use rectangles. ठीक है ना? Symbol for states in a state chart diagram is a rectangle like this. Again, there are three notational choices for states. ठीक है ना? इस स्टेट को आप फर्दर कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो फर्दर थ्री कंपार्टमेंट्स. ठीक है? द नोटेशनल चॉइसेस आर के फर्स्ट नोटेशनल चॉइस is कि आप इस रेक्टेंगल को यूज करोगे विद नो डिवीजन, एंड इस रेक्टेंगल के अंदर आप स्टेट का नाम लिखोगे, जैसे पेड, ठीक है ना, बुक्ड, रिजर्व, डिलीवर्ड, कंप्लीट. ठीक है ना? आप उस स्टेट का नाम लिखो using this rectangle with no notation divisions, state's name इसके. ठीक है? द अदर नोटेशनल चॉइस इज कि आप इसके दो या तीन कंपार्टमेंट्स बना सकते हैं. ठीक है ना? यू कैन यूज दिस रेक्टेंगल विद टू पोर्शंस और दिस रेक्टेंगल विद थ्री पोर्शंस. बाकी दो दो जो दो नेमिंग कंपार्टमेंट है विच इज कंपलसरी. ठीक है? नेम के अलावा दो कंपार्टमेंट्स आप बना सकते हो. ठीक है ना? जरूरी नहीं कि दोनों एट अ टाइम बनाओ. ठीक है ना? नेम के अलावा
एक और कंपार्टमेंट बना सकते हो, नेम के अलावा दो और कंपार्टमेंट्स बना सकते हो, ठीक है ना। तो स्टेट चार्ट डायग्राम कुड लुक लाइक दिस, कुड लुक लाइक दिस, कुड लुक लाइक this with three compartments. The other two compartments, apart from the name, are for internal activities and internal transitions. ठीक है ना, internal activities क्या होती हैं, will cover in this slide. ठीक है ना, internal transitions क्या है, हम coming किसी स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द नोटेशन चॉइसेस आर कि आप स्टेट को विद रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर सकते हो, विद नो डिविजन्स, जस्ट द नेम, विद टू पोर्शंस और विद थ्री पोर्शंस, ठीक है। तो इंटरनल एक्टिविटीज इन स्टेट के नाम के साथ साथ इंटरनल एक्टिविटीज भी स्पेसिफाई आप कर सकते हो यूजिंग थ्री यूएमएल कीवर्ड्स एंट्री, डू एंड एग्जिट, ठीक है। तो नेम के बाद आप एक और कंपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हो इन स्टेट, फॉर अ स्टेट, एंड टू फॉर एग्जांपल स्पेसिफाई इंटरनल एक्टिविटीज। इंटरनल एक्टिविटीज के लिए आप तीन कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, एंट्री, डू एंड एग्जिट। एंट्री, दे वेरी सिंपल मीनिंग। एंट्री मीन्स कि व्हाट हैपेंस अपॉन एंटरिंग दिस स्टेट, ठीक है। व्हाट action unfolds upon entering this state. Do would mean what the object continuously carries on doing while the object is in this particular state. ठीक है? And the exit would mean what happens upon leaving this state basically. ठीक है? When a transition happens, when an object changes its state from this particular one to another, what sort of action unfolds, ठीक है। आप इस इन तीन चीजों को हर स्टेट या हर ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफाई करना लाजमी नहीं है, ठीक है ना। कई जगहों पे बिल्कुल सेंस भी नहीं बनता इनको स्पेसिफाई करने का, लेकिन बहुत से अगर इस तरह के मौके आ सकते हैं जहाँ पे आपको ये फर्दर लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फोर्स करना पड़ेगा या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा अपने डायग्राम में। तो आप इसके लिए ये क्या कहते हैं, इंटरनल एक्टिविटीज का कंपार्टमेंट विद दिस थ्री कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग अ यूट्यूब वीडियो, ठीक है ना, आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। एंड योर डिवाइस लेट्स से लूजेस कनेक्शन और सब इनकाउंटर्स स्लो इंटरनेट और समथिंग, ठीक है। तो आपका आप ठीक है ना, वो वीडियो उस वक्त यूट्यूब का प्ले स्टेट में था, ठीक है। अपॉन encountering a poor network or some network difficulties, the for example video will change, the object will change its state from playing to buffering, okay. Now for this transition, for the buffer state, when video transitions from play to buffer, you can specify internal activities using these three keywords. Let's say uh, we are trying to understand or make sense of these three keywords with an example, ठीक है ना, with a relatable example. सॉफ्टवेयर बट ठीक है। तो आ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंट्री, एंट्री में क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस स्टेट फ्रॉम प्लेइंग टू बफरिंग, ठीक है। तो आपको एक बफर आइकॉन नजर आना शुरू होगा स्क्रीन पे, ठीक है। द ऑब्जेक्ट वुड शो यू अ बफर आइकॉन, ठीक है। यू कुड से कि भाई ठीक है ना, यहाँ पे एंट्री पे आप लिख सकते हैं कि शो बफर आइकन, ठीक है ना, वो आपको गोल सर्कल वीडियो के ऊपर नजर आना शुरू होगा जब वो स्टेट चेंज करेगा फ्रॉम प्लेइंग टू बफरिंग, ठीक है। वाइल क्या कहते हैं, आपका वीडियो बफरिंग स्टेट में है, जब तक कि वो बफरिंग स्टेट में है तो इट इज कंटिन्यूसली डाउनलोडिंग बफर चंक्स ना बेसिकली। बफरिंग स्टेट में है तो कंटिन्यूसली वो क्या कहते हैं, बफर चंक्स लोड करने की कोशिश कर रहा है, तो आल ट्राइंग टू लोड बफर चंक्स, ठीक है ना। तो लोडिंग बफर चंक्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, वाइल डू डू टू कीवर्ड के बाद आप क्या कहते हैं, लोडिंग बफर चंक्स। अपॉन एंटरिंग इट विल शो यू द बफर आइकॉन, while in this state it continuously loads buffer chunks, ठीक है ना। अपॉन एग्जिटिंग दिस स्टेट, जब नेटवर्क दोबारा स्टेबल क्या कहते हैं, स्टेबल हो जाए, तो बफरिंग से दोबारा ट्रांजिशन करके प्लेइंग पे जाएगा, ठीक है ना। द स्टेट वुड अगेन चेंज फ्रॉम बफरिंग टू प्लेइंग, ठीक है। तो while leaving this state the icon would be removed, ठीक है ना। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि remove the buffer icon,
शो द बफर आइकॉन, प्लेइंग से जब बफरिंग में आएगा, ठीक है ना, वाइल इन दिस स्टेट वो क्या कर रहा होगा, बफर चंक्स लोड कर रहा होगा, वाइल लीविंग दिस स्टेट इट विल रिमूव द दैट, ठीक है, बफर आइकॉन बेसिकली, ठीक है। लेट्स से कि आप एक साइट से कोई फाइल वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं, तो फ्रॉम आइडल टू डाउनलोडिंग, ठीक है, आपका स्टेटस चेंज होगा एज अ यूजर ऑफ द साइट, ठीक है। तो डाउनलोडिंग के लिए क्या करेगा, आपके आपको आपके लोकल उससे और सोर्स जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं एक कनेक्शन स्टेब्लिश होना लाजमी है। तो आप कह सकते हैं कि वाइल एंटरिंग डाउनलोडिंग या डाउनलोडिंग स्टेट के लिए, एंट्री के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि वाइल एंटरिंग दिस स्टेट अ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको जिस अपने पर्सनल पीसी पे डाउनलोड करना, ठीक है ना। वाइल इन दिस स्टेट the क्या कहते हैं, chunks of file or streams of files are continuously being transferred from source to, तो यहाँ क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग फाइल चंक्स और फाइल स्ट्रीम्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं जब तक कि आप इस स्टेट में हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली फ्रॉम द सोर्स वेबसाइट टू योर पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना, फाइल स्ट्रीम्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। जब वो डाउनलोड कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो वो कनेक्शन जो है दोबारा आप क्या कहते हैं, डिस्टेब्लिश या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। द कनेक्शन इज रिमूव, द कनेक्शन इज बेसिकली नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ठीक है। सो आई होप के मेक सेंस, ठीक है, जो बातें हमने की। इसके अलावा दो कंपलसरी स्टेट जो के आप यूज कर सकते हैं विद दी सिंबल्स, ठीक है। दिस फिल सर्कल, दिस फिल सर्कल विद another hollow circle, ठीक है ना, फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है ना। आप हमने शुरू में ये वो क्या है, एस्टेब्लिश किया है क्या, स्टेट चार्ट डायग्राम इज बेसिकली ट्राइंग टू मॉडल अ लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन अ सिस्टम, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट वुड स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाइफ, ठीक है ना, एंड द फाइनल स्टेट वुड डिफाइन द एग्जिट और लास्ट पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। तो यू कैन यूज these two symbols to start a state chart diagram basically or end a state chart diagram, ठीक है। start an object's life cycle और you can define the end of an object's life cycle और last point of an object's life cycle, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वेरी फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, लेमन एग्जांपल, जहाँ पे एक अंडरग्रेड स्टूडेंट था। अंडरग्रेड स्टूडेंट लाइफ साइकिल begins as a freshman, ठीक है। Then it changes states with time as sophomore, as junior, as senior. Senior के बाद it would pass out and would no longer be an undergrad student. So senior is the last point in that life cycle. ठीक है, के बाद it ceases to exist basically. This object's life cycle ends basically. ठीक है, जैसे इन एन एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इनवॉइस है, इनवॉइस when created is unpaid, ठीक है। तो इनवॉइस जब क्रिएट होगा तो आप कह सकते थे कि क्रिएटेड, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट टर्म इज अनपेड, ठीक है। जब न्यूली एक क्या कहते हैं, न्यूली इनवॉइस क्रिएट हुआ है तो इट्स मेक लॉजिकल सेंस कि इट इज इन द अनपेड स्टेट, ठीक है। जब एक सर्टेन इवेंट अनफोल्ड होगा, ठीक है, तो इट ट्रांजिशंस फ्रॉम अनपेड टू बीइंग पेड, ठीक है ना, एंड इट वुड, ठीक है ना, आप इसका एंड पॉइंट स्पेसिफाई पेड के बाद दिस इनवॉइस cease to exist, ठीक है। This is the last let's say point of its life cycle, ठीक है। इसके बाद कोई सिचुएशन या कोई सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती पेड होने के बाद, ठीक है। So moving on to the next element in the state chart diagrams, uh, which is transition, ठीक है, transition element
ट्रांजिशन इटसेल्फ बेसिकली मींस के चेंजिंग स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है ना। तो स्टेट चेंजेस को आप इन स्टेट चार्ट डायग्राम कम्युनिकेट या मॉडल कर सकते हो यूजिंग दिस ट्रांजिशन एरो। दिस इज बेसिकली द आफ्टर स्टेट, दिस इज the other notation that you can use in a state chart diagram. This arrow basically represents a transition arrow which specifies a certain state change, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि एक इनवॉइस ऑब्जेक्ट इज इन क्वेश्चन हियर, ठीक है ना। इनवॉइस यहाँ पे अनपेड स्टेट में है, ठीक है ना। आफ्टर सर्टेन एक्टिविटी और यूजर एक्शन द इनवॉइस और दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स स्टेट चेंज फ्रॉम अनपेड टू पेड, ठीक है। तो इस स्टेट चेंज को हमने इस स्टेट चार्ट डायग्राम में किस तरह मॉडल किया हुआ है, यूजिंग दिस ट्रांजिशन एरो। this transition arrows can be used to basically model transitions or state changes, ठीक है। transitions obviously do not happen from nowhere, ठीक है। transitions do not occur out of nowhere, ठीक है ना। transitions हमेशा in response to some user action, in response to some event carry out। तो जब आप ट्रांजिशन मॉडल कर रहे होगे, ठीक है, तो यू नीड टू फॉर एग्जांपल स्पेसिफाई कि ये ट्रांजिशन किस इवेंट के रिस्पॉन्स में हो। इफ दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स अ सर्टेन कंडीशन, तो वो कंडीशन क्या है। इफ दिस ट्रांजिशन while transitioning a certain user action or certain activity the system carries out, तो वो एक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो मजीद मतलब दिस, ये मतलब ट्रांजिशन, ये दिस सिंबल इज द ट्रांजिशन एरो जो कि स्टेट चेंजेस कम्युनिकेट करता है। मजीद इस ट्रांजिशन एरो को आप लेबल कर सकते हैं टू कम्युनिकेट कि ये ट्रांजिशन आकर क्यों हुआ है, ये ट्रांजिशन किस इवेंट के रिस्पॉन्स पे आकर हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसकी लेबल इसको कर, जो क्या कहते हैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि पेइंग लिखा हुआ है। पेइंग बेसिकली इज इन इवेंट, ठीक है ना। इस इवेंट के रिस्पॉन्स पे ये अनपेड से पेड में ट्रांजिशन कर गया है स्टेट, ठीक है। तो द यूएमएल कोर नोटेशन फॉर ट्रांजिशन लेबल्स आर के आप ये लिख सकते हो। दिस इज द बेसिक मतलब सिंटेक्स फॉर लेबल्स, इवेंट गार्ड एंड स्लैश एक्शन। इस क्या कहते हैं लेबल में आपको तीन एलिमेंट्स से तीन कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। तीन कंपोनेंट्स क्या है, इवेंट, गार्ड एंड एक्शन। इवेंट मींस के क्या कहते हैं व्हाट बेसिकली ट्रिगर्ड दिस ट्रांजिशन, ठीक है ना। जैसे तक आपने कार्ड इंसर्ट कर दिया, तो आइडल से कार्ड इंसर्टेड की तरफ जाएगा, तो इंसर्ट अ कार्ड इज इन इवेंट, ठीक है ना। प्लेस अ ऑर्डर आपने क्लिक किया, बुक अ राइड आपने क्लिक किया, बोरो अ बुक आपने क्लिक वो किया, तो these all are इवेंट्स, ठीक है। विदड्रॉ कैश पे आपने क्लिक किया, सही है। इफ क्या कहते हैं इवेंट्स के अलावा इफ दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स चेकिंग अ सर्टेन कंडीशन, तो आप उस कंडीशन को एज अ गार्ड उस लेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ इट डज नॉट, तो आप जरूरी नहीं है मतलब आफ्टर इवेंट इज कंपलसरी, ठीक है ना। हर ट्रांजिशन एक इवेंट के रिस्पॉन्स में होता है। जरूरी नहीं कि हर ट्रांजिशन एक कंडीशन चेक करे, जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजिशन के कैरी आउट होने के वक्त वाइल ट्रांजिशनिंग एक सर्टेन एक्टिविटी परफॉर्म, अगर सर्टेन एक्टिविटी एक्शन कैरी आउट होता है तो आप उस एक्शन को मतलब अकोमोडेट कर सकते हैं इस लेबल के अंदर, ठीक है। तो द लेबल फॉर ट्रांजिशंस, जनरल सिंटेक्स फॉर लेबल्स आर के इवेंट, दिस इज द जनरल सिंटेक्स, दिस सिंटेक्स बेसिकली इज द कंपोनेंट्स, ठीक है ना। हमने तीनों कंपोनेंट्स की बात की है, ठीक है। आप विद इन एग्जांपल अगर मैं समझाऊं आपको, लेट्स से कि आपने क्या कहते हैं एक सर्टेन पेज पे लॉगिन कर लिया, तो क्लिकिंग द लॉगिन बटन इन द यूआई इज अ इवेंट, ठीक है ना। द यूजर क्लिक द लॉगिन बटन, यूजर एंटर द लॉगिन बटन, ठीक है। लॉगिन आप तभी कर सकते हैं अगर आपके क्रेडेंशियल्स वैलिड है। तो दिस देयर इज अ कार्ट बेसिकली ट्रांजिशन, आप यूजर आप लॉग्ड आउट स्टेट में, लॉग्ड इन स्टेट में आप तभी आ सकते हैं, ठीक है, अगर आपके क्या कहते हैं क्रेडेंशियल्स बताए हुए इस फॉर्म में वैलिड है, ठीक है। इवेंट ये है कि आपने लॉगिन बटन क्लिक किया, ठीक है ना, आपने लॉगिन फॉर्म फिल करके वो बटन क्लिक किया, तो देयर एन इवेंट, ठीक है। आ, वो उस इवेंट के बाद दिस ट्रांजिशन चेक्स अ कंडीशन, ठीक है ना।
यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि वो चेक करेगा, वो जाहिर सी बात है कि आपके क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं तो यू मतलब फर्दर ये प्रोसीड करेगा। तो क्रेडेंशियल्स की वैलिडिटी के लिए वैलिडिटी चेक होगी तो आप उसको एज अ कार्ड यहाँ पे उस लेबल में लिख सकते हो। इवेंट ये था कि लॉगिन लॉगिन इज द इवेंट, ठीक है ना। क्रेडेंशियल्स वैलिडिटी इज द कार्ड, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं, आपके यूजर प्रोफाइल या डैशबोर्ड का एक्सेस वो प्रोवाइड करेगा वंस के ये वेरीफाई होंगे क्रेडेंशियल्स, ठीक है ना। तो एक्शन यहाँ पे होगा कि वाइल ट्रांजिशनिंग वो आपको वो पेज लोड करेगा, ठीक है ना। कि लॉगिन के बाद आपको जो भी इनिशियल पेज मिलता है, आपका यूजर प्रोफाइल है, डैशबोर्ड है, जो भी है, उस डोमेन का क्या कहते हैं डिजाइन चॉइस, ठीक है, सिस्टम का। तो एक्शन यहाँ पे क्या होगा कि ग्रांट एक्सेस लेट्स, ठीक है, लोड द login page, load the user dashboard. Event is login, guard is checking for validity, and action is granting, for example, access, ठीक है। another example could be कि आपने एटीएम उसमें withdraw क्लिक किया, ठीक है ना। withdraw is the event, withdraw is the event, ठीक है ना। guard is कि आपका अकाउंट बैलेंस शुड बी ग्रेटर, मतलब आपका अकाउंट बैलेंस उतना होना चाहिए जितना अमाउंट आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एक्शन इसके वो क्या कहते हैं डिस्पेंस करेगा आपको कैश, ठीक है ना। विदड्रॉ इज द इवेंट, ठीक है ना। चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ द अमाउंट इज द गार्ड, एंड डिस्पेंसिंग द कैश जो आपने विदड्रॉ करने का ऑप्ट किया था वो इज द एक्शन, ठीक है ना। आफ्टर दिस ट्रांजिशन आपका जो कार्ड बेसिकली वो जो सर्विंग स्टेट में था वो एजेक्टेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ इन इंटायर, मतलब इन तमाम नोटेशंस के साथ जो हमने अभी पर डिस्कस किया। तो दिस इज बेसिकली अ स्टेट चार्ट डायग्राम एट अ ग्लांस गिविंग ऑल द एलिमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट, ठीक है। दिस इज अ स्टेट चार्ट मॉडलिंग ओपन ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट, ठीक है ना। आपको तीन मेन स्टेट्स नजर आ रहे हैं। ये कंपोजिट स्टेट है, इस पे हम बाद में आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक स्टेट नजर आ आइडल, ठीक है। यहाँ से इनिशिएट हुआ आपका, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टेट चार्ट डायग्राम। आपका थर्मो स्टेट इज इन द आइडल स्टेट फॉर नाउ, ठीक है। लेट्स से एक इवेंट कॉल हुआ कि द रूम इज टू कोल्ड, ठीक है। एक इवेंट वाइल इन द आइडल स्टेट अ फंक्शन कॉल आया कि द इवेंट इज टू कोल्ड, ठीक है। लेट्स से द टेम्परेचर ऑफ द रूम क्या कहते हैं, the temperature of the room exceed a certain लिमिट, ठीक है। तो एक फंक्शन ट्रिगर हुआ, एक इवेंट ट्रिगर हुआ टू कोल्ड का। दिस इवेंट forces the thermostat to change its state from being idle to heating. हीटिंग इज ए कंपोजिट स्टेट, इसके अंदर नेस्टेड मजीद स्टेट है कि हीटिंग अगर स्टेट में आएगा तो हीटिंग मतलब वो थर्मोस्टेट का एक कंप्रेसर है, वो पहले एक्टिवेट होना शुरू करेगा, फिर वो एक्टिव होके हीटिंग शुरू करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हीट करना नहीं शुरू करेगा, पहले वो कंप्रेसर ऑन होगा, वो एक्टिवेट होगा, देन एक्टिवली वो हीटिंग हीटअप करना शुरू करेगा रूम, ठीक है। वाइल इन दिस स्टेट अगर रूम बहुत ज्यादा, वाइल द थर्मोस्टेट इज इन द हीटिंग स्टेट, ठीक है। एक इवेंट ट्रिगर हो जाए कि द रूम इज टू हॉट, तो ये हीटिंग से कूलिंग स्टेट में ट्रांजिशन कर, ठीक है ना। वाइल ट्रांजिशन आप शो करते हैं कि यहाँ पे टू कोल्ड का अगर एक इवेंट ट्रिगर हुआ है तो ट्रांजिशन बेक्स टू हीटिंग, ठीक है ना। वाइल इन द हीटिंग स्टेट, ठीक है, टेम्परेचर वो नॉर्मलाइज्ड क्या कहते हैं उस पे पॉइंट पे रीच हो जाए, हीटिंग से वो वापस आइडल स्टेट पे चला जाए, ठीक है। आइडल से एक टेम्परेचर जिस तरह टू कोल्ड के लिए उसने हीटिंग में ट्रांजिशन किया था, उसी तरह अगर वो टू हॉट का इवेंट क्या कहते हैं इवेंट ट्रिगर हो जाए तो आइडल से थर्मोस्टेट फिर चेंज स्टेट फ्रॉम आइडल टू कूलिंग, ठीक है। यू कैन सी के क्या कहते हैं आप इन इवेंट्स को एज फंक्शन कॉल रिप्रेजेंट कर सकते हो विद क्या कहते हैं आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स, ठीक है ना। आप इन इवेंट्स को सिंपल टेक्स्ट एज लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे कोई कंडीशन या कोई एक्शन नहीं शो कराया गया, सिर्फ द इवेंट पार्ट ऑफ दिस लेबल नोटेशन इज यूज्ड, ठीक है।
तो इवेंट्स को भी आप एज क्या कहते हैं कंप्लीट फंक्शंस, फंक्शन कॉल विद पैरामीटर्स लिख सकते हो, या सिंपल जस्ट टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया था सिंपल टेक्स्ट के पेइंग। पेइंग इज बेसिकली अगर क्या कहते हैं एक फंक्शन कॉल ही है, लेकिन आप ठीक है यू कैन ऑप्ट द डिजाइन चॉइस के, ठीक है ना, आप क्या कहते हैं कौन सा नोटेशन यूज करें। ठीक है, अदर बेसिक एग्जांपल के, आपका एक कार्ड फॉर एग्जांपल स्वाइप किया तो इट्स वेटिंग फॉर द पिन, जब आपने पिन एंटर कर दिया तो पिन वेरिफिकेशन स्टेट में वो आ गया। ठीक है, द आइडिया इज कि अभी क्या कहते हैं कंबाइनिंग द यूजेज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, जो ऑल दीज एलिमेंट्स जो हमने अभी बात की। ठीक है, दिस इज अ मच रिचर एग्जांपल तो आपको help you understand better all the how can you combine all these elements to model real world scenario basically। ठीक है, so moving on, events are the third and last element in the state chart diagrams. Events basically are actions or activities which trigger state changes in the state chart diagrams। ठीक है ना, the actions or the activities which trigger transitions, उसको हम क्या कहते हैं इवेंट्स कह रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट चार्ट डायग्राम। ठीक है, in the UML package state chart, the events are basically classified into four primary types. For subtype, as you can see in the slide, are change event, signal, call, and then time event। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी ट्रांजिशंस और ऐसी स्टेट चेंजेस जो एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे ट्रिगर होती हैं, उनको हम चेंज इवेंट यूएमएल उसमें क्लास पैकेज में क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने थर्मोस्टेट एग्जांपल की लास्ट उसमें बात की है कि व्हेन फॉर एग्जांपल अ सर्टेन कंडीशन मीट्स, आपने एक थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है थर्मोस्टेट में कि लेट्स से टेम्परेचर 35 से ग्रेटर हो जाए तो कूलिंग ऑन कर दो। ठीक है, तो दिस कंडी व्हेन दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, ठीक है, तो ये कंडीशन का ट्रू होना इज एन इवेंट इटसेल्फ। ठीक है, तो इस इवेंट को हम एक चेंज इवेंट कह सकते हैं कि सर्टेन कंडी जब भी इस तरह की इवेंट उससे एक ट्रांजिशन ट्रिगर हो, जब भी एक सर्टेन कंडीशन के ट्रू होने पे एक ट्रांजिशन ट्रिगर हो, ठीक है ना, तो आप उसको क्या कहते हैं लेकिन दो कॉन्टेक्स्ट हैं कहीं, जब हमने लास्ट ट्रांजिशन लेवल की बात की थी, इवेंट के बाद अगर कोई कंडीशन चेक होता है तो देयर अ गार्ड बेसिकली। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे भी गार्ड नोटेशन ही यूज करोगे उस कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन दैट गार्ड इटसेल्फ यहाँ पे वो इवेंट इटसेल्फ दैट गार्ड है। ठीक है, और क्या कहते हैं कहीं पे क्या कहते हैं इवेंट इटसेल्फ गार्ड नहीं होता, लेकिन गार्ड इज अ सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, तो जब गार्ड इटसेल्फ बिकम्स द इवेंट, द कंडीशन इटसेल्फ बिकम्स द इवेंट, कि ये कंडीशन ट्रू होने पे एक ट्रांजिशन ट्रिगर होगा, तो आप उसको एक चेंज इवेंट कह सकते हो। जैसे टेम्परेचर ग्रेटर देन 36 हो गया, 35 हो गया, अ, ठीक है ना, थर्मोस्टेट आइडल से कूलिंग पे चला गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास कहते हैं सिग्नल स्टेट इवेंट है, कॉल इवेंट। सिग्नल इवेंट बेसिकली स्पेसिफाई कि जब आपके सिस्टम को आउटसाइड किसी डिवाइस से, आउटसाइड किसी ये क्या कहते हैं एक्सटर्नल सिस्टम से एक सिग्नल, एक मैसेज, एक मैसेज आए और उसके रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं विद इन द सिस्टम क्या कहते हैं एक स्टेट चेंज ट्रिगर हो, तो उसको आप सिग्नल इवेंट कह सकते हो। ठीक है ना, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल एक कॉल आना शुरू हो जाए, ठीक है ना, मेरा फोन आइडल पड़ा हुआ है, वो कॉलिंग मोड पे चला जाएगा। ठीक है, वो टॉकिंग मोड पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन एक आउटसाइड उससे डिवाइस से इसको विद इन द सिस्टम कोई इस तरह की स्टेट चेंज ट्रिगर नहीं हुई है। ठीक है ना, ये सिग्नल फ्रॉम एन आउटसाइड डिवाइस आया है, तो हम इसको एक सिग्नल इवेंट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम होम ऑटोमेशन
एक होम ऑटोमेशन का सिस्टम है, या एक फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल है, मॉल है, उसके डोर्स पे, मेन डोर्स पे, ठीक है ना, मोशन सेंसर्स लगे हुए, ठीक है। जब भी कोई क्या कहते हैं एंट्री के लिए उसके क्या कहते हैं सर्टेन डिस्टेंस में करीब जाता है, तो डोर क्या कहते हैं ओपन होते हैं या क्लोज हो जाते हैं जब कोई नहीं होता तो, ठीक है ना। तो वो डोर डोर को जो एक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, उसको एक मोशन सेंसर से, ठीक है, मोशन सिस्टम इज एन एक्सटर्नल डिवाइस जिससे एक सिग्नल जाता है कि कोई आ रहा है, ठीक है ना, समवन एक एट अ सर्टेन डिस्टेंस पहुंच गया। तो सिग्नल मोशन से डिटेक्टर मोशन डिटेक्ट करके उस मोशन का सिग्नल डोर कंट्रोलर को भेजेगा एंड वो डोर ओपन करेगा। तो डोर का स्टेट फ्रॉम क्लोज टू ओपन चेंज होगा जब उसको क्या कहते हैं सिग्नल आएगा कि मोशन डिटेक्टर की तरफ से, ठीक है ना। तो दीज जब एक एक्सटर्नल डिवाइस की तरफ से, ठीक है, एक्सटर्नल सिस्टम की तरफ से एक सिग्नल या मैसेज रिसीव हो और उसके रिस्पॉन्स में एक स्टेज चेंज ट्रिगर हो, तो आप उसको सिग्नल इवेंट कह सकते हैं। जब द सिस्टम और ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एक फंक्शन कॉल करे और उस फंक्शन कॉल के रिस्पॉन्स पे क्या कहते हैं स्टेट चेंज ट्रिगर हो या ट्रांजिशन ट्रिगर हो, तो आप उनको क्या कहते हैं कॉल इवेंट कह सकते हैं, जिससे द एटीएम एप्लीकेशन इटसेल्फ क्या कहते हैं विदड्रॉ का फंक्शन कॉल कर ले, ठीक है ना, वैलिडेट कार्ड का फंक्शन कॉल कर ले। तो वैलिडेट कार्ड का फंक्शन एटीएम एप्लीकेशन इटसेल्फ कॉल करेगा, ठीक है ना। या टाइम बाउंड इवेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक सर्टेन सिस्टम डिवाइस या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लॉग्ड इन हैं और आपका सेशन लेट्स से के 5 सेकंड बाद एक्सपायर हो जाए, ठीक है ना, आप 5 सेकंड क्या कहते हैं एक्टिव उसमें नहीं थे। अ, सो बेसिकली द सेशन अगर एक्सपायर हो जाए तो सेशन इज अ टाइम बाउंड इवेंट, सेशन का एक सर्टेन टाइम बाउंड्री होती है, लेट्स से कि अदर एग्जांपल के जैसे आपका व्हाट्सएप 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली बैकअप स्टेट में आ जाता है, बैकअप करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के क्या कहते हैं पीरियोडिक टाइम बैकअप और या इस तरह के किसी भी सर्टेन क्या कहते हैं टाइम पीरियड के एग्जॉस्ट होने के बाद एक स्टेट चेंज ट्रिगर हो, तो आप उसको टाइम इवेंट कह सकते हो, ठीक है ना। इवेंट्स को आप सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हो, एज फंक्शन कॉल्स लिख सकते हो अगर एक फंक्शन कॉल है वो। आप इवेंट्स को कंडीशंस लिख सकते हो अगर एक चेंज इवेंट है तो, ठीक है ना। टाइम बाउंड इवेंट्स को भी आप एक एज कंडीशंस टाइम बाउंड कंडीशंस लिख सकते हो, ठीक है। तो द नोटेशंस आर कि द ठीक है, आप पहले तो इस इवेंट्स को बेसिक सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे ओपन इज एन इवेंट, विथड्रॉ इज एन इवेंट, डिपॉजिट इज एन इवेंट, सबमिट इज एन इवेंट, ठीक है। और यू कैन यूज गार्ड नोटेशंस फॉर चेंज इवेंट्स लाइक के आपके पास क्या है इस तरह के फंक्शन प्रोटोटाइप्स आप यूज कर सकते हो फॉर इवेंट्स। विदड्रॉ अगर आप सिंपली इस तरह लिख सकते हो, या विदड्रॉ आप विद इज अ फंक्शन प्रोटोटाइप लिख सकते हो, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट नोटेशंस कि आप इवेंट्स किस तरह डॉक्यूमेंट या मॉडल कर सकते हो इन योर स्टेट चार्ट डायग्राम्स, ठीक है। आप गार्ड नोटेशंस फॉर चेंज इवेंट यूज कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। गार्ड नोटेशंस आप इस तरह के ब्रैकेट्स में एग्जैक्ट कंडीशन जो आप इफ एंड एल्स इफ में प्रोग्रामिंग में लिखते हैं उस तरह के एग्जैक्ट नोटेशन में या सिंटेक्स में लिखो, ठीक है। टाइम बाउंड इवेंट्स को भी आप क्या कहते हैं इवेंट्स को इन ब्रेक इन द सेम गार्ड ब्रैकेट्स
देख सकते हो, ठीक है ना, जहाँ पे आप क्या कहते हैं टाइम मिनिमम में मैक्सिमम टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। 15 सेकंड के बाद एक स्टेट चेंज ट्रिगर होगा। दिस दिस बेसिक नोटेशन या सिंटेक्स मींस के यहाँ पे आफ्टर 15 seconds a state change basically transition is triggered, ठीक है। एंड लास्टली जो हम इंटरनल ट्रांजिशन स्टेट के लास्ट कंपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे, द लास्ट पोर्शन, थर्ड पोर्शन इन स्टेट सिंबल और स्टेट रेक्टेंगल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ यू कैन रिकॉल, हम क्या कहते हैं इंटरनल ट्रांजिशंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरनल ट्रांजिशंस आपके पास ये वो स्लाइड है जहाँ पे हमने बात की थी इसकी, ठीक है ना। तो आप स्टेट रेक्टेंगल के अंदर just the after internal activities, the other optional portion or section is for internal transitions, ठीक है। इंटरनल ट्रांजिशन बेसिकली मींस के एक सर्टेन एक्शन अगर होगा लेकिन उससे स्टेट चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। विद इन आप एक सर्टेन स्टेट में है, उस स्टेट के अंदर वो ऑब्जेक्ट सर्टेन एक्टिविटीज की क्या कहते हैं या एक्शंस परफॉर्म करेगा, लेकिन उन एक्शंस के रिस्पॉन्स में कोई स्टेट चेंज ट्रिगर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे इन द स्लाइड जो एग्जांपल मेंशन्ड है वो एक कीबोर्ड का एग्जांपल है। जैसे कीबोर्ड एट अ टाइम कैन बी इन अ कैप्स लॉक स्टेट और डिफॉल्ट स्टेट, ठीक है। अगर वो फॉर एग्जांपल एक कीबोर्ड डिफॉल्ट स्टेट में है, मैं कोई भी प्रेस करूं अपार्ट फ्रॉम द कैप्स लॉक की कीबोर्ड के कैप्स लॉक के अलावा मैं कोई भी की प्रेस करूं, उस की से स्टेट कीबोर्ड की डिफॉल्ट से चेंज नहीं हो, स्टेट डिफॉल्ट ही रहेगा। मैं कोई भी की प्रेस करूं एनी की, ठीक है। लेकिन मैं कैप्स लॉक की प्रेस करूंगा तो दैट चेंजेस अ ट्रांजिशन, दैट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम बीइंग फ्रॉम डिफॉल्ट टू कैप्स लॉक, ठीक है। इसी तरह मैं कैप्स लॉक स्टेट में हूँ और मैं कोई भी एनी की प्रेस करूँ, ठीक है ना, उससे कोई ठीक है, दीज आर इंटरनल ट्रांजिशंस, ठीक है ना। एक सर्टेन आउटकम आएगा, उसको इंटरनल ट्रांजिशन, सर्टेन आउटकम आएगा, उस एक्शन का सर्टेन रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन उस एक्शन पे कोई स्टेट चेंज ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है ना। आप एक साइट में लॉग्ड इन है, आप यूज कर रहे हैं और आपने रिफ्रेश कर दिया वो पेज, रिफ्रेश के रिस्पॉन्स में कुछ ठीक है सर्टेन एक्शन परफॉर्म हुआ, सर्टेन एक्टिविटी कैरी आउट हुई, लेकिन आप लॉग्ड इन स्टेट में ही रहे, आपका स्टेट लॉग इन से लॉग आउट में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जो इंटरनल ट्रांजिशंस, ठीक है, जस्ट टू समराइज वी वुड बेसिकली मीन के व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन अ सर्टेन स्टेट, ठीक है ना, उस स्टेट में देयर आर सर्टेन एक्शंस, ठीक है, जो क्या कहते हैं कुछ आउटकम्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ रिजल्ट्स शो करेंगे, कुछ बिहेवियर्स एग्जिबिट करेंगे, लेकिन उन एक्शंस के रिस्पॉन्स पे स्टेट चेंज नहीं होगा, एक ट्रांजिशन ट्रिगर नहीं होगा, तो उनको हम इंटरनल ट्रांजिशन से इंटरनल रियलाइजेशन ऑफ इन स्टेट चार्ट डायग्राम कह सकते हैं, ठीक है। फाइनली, ठीक है ना, सम एग्जांपल्स विल डिस्कस टू समराइज के एवरी रोटेशंस या एवरी एलिमेंट्स जिसकी हम। So this is another example. This is a state chart diagram basically of a thread in an operating system. I've integrated many such examples. I won't go through every example in detail in this in the lecture. Obviously, I will leave some for you to explore, but I tried to include as many as I could in the slides. ठीक है ना। तो हर देयर सम रिडंडेंट कंसेप्ट्स, ठीक है ना। कुछ जैसे हमने थर्मोस्टेट की बात की है, तो कुछ रिलेटेड सिनेरियोज होंगे जिनकी फिर हर एग्जांपल को हम डिटेल में, थर्मोस्टेट पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं, तो उनके उन पे मुझे डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं होगी। फॉर योर रेफरेंस आप फिर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इस एग्जांपल पे
this basically captures the essence of what state chart diagrams try to model. State chart diagrams are intent to model basically. ठीक है, हमने बात की है कि लाइफ साइकिल ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल का, we model life cycle of an object using a state chart diagram. ठीक है ना, with the state chart diagrams define every possible object or every possible state a object could be in, और वो क्या events and scenarios हैं जो objects को अपना state change करने में मजबूर करते हैं, ठीक है ना, उस object के state changes trigger करते हैं, ठीक है। तो you can see in this diagram कि if a thread when created is in the new state, ठीक है, जब उसको CPU टाइम एलोकेट होता है तो CPU एलोकेशन ऑफ CPU टाइम इज अ इवेंट व्हिच अकर्स, ठीक है ना, तो वो ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम न्यू टू रनिंग स्टेट, ठीक है। जब वो रनिंग स्टेट में है और कोई आईओ इंटरप्शन आए तो स्लीप स्टेट में चला जाता है, ठीक है ना। जब अगर वो रनिंग स्टेट में है और उसका सीपीयू एलोकेटेड टाइम पूरा हो जाए तो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, दोबारा सीपीयू टाइम मिलेगा तो वापस वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। रनिंग स्टेट में है और उसका टास्क डिफाइंड कंप्लीट हो जाए तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा। टर्मिनेटेड स्टेट इज द, फॉर एग्जांपल, फाइनल स्टेट a thread could be in, ठीक है ना, ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। इट्स द अर्लीस्ट स्टेट इज द न्यू स्टेट, जब वो न्यूली क्रिएट होगा in a life, from a life cycle perspective. You can see a linear sort of walk. It's the earliest state thread could be in, and it is the last for final state uh, a thread could be in a operating system, ठीक है। तो यहाँ पे आप जस्ट नोटिस्ड कि दिस पोर्शन इज नॉट entirely accurate from a operating system perspective, ठीक है। अगर आप साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो you might flag this portion as inaccurate, क्योंकि यहाँ पे इन एक्चुअल सिनेरियोज इस तरह नहीं होता कि स्लीप से वापस रनिंग स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो from a state chart discussion point of view, तो this is a good enough example, ठीक है ना। यू कैन इग्नोर दिस पोर्शन कि ये जो आपके पास ट्रांजिशन है ना, इट इज प्रैक्टिकली इनकरेक्ट, ठीक है। स्लीप से, फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम परस्पेक्टिव, स्लीप से वेटिंग में जाएगा, फिर वेटिंग से उसको रनिंग भी जा सकता है। डायरेक्ट स्लीप से रनिंग में ट्रांजिशन करना, ठीक है। आई कैन आई थिंक यू गेट द पॉइंट, ठीक है। Another basic example of our door open could be in opened state, closed state, or locked state. ठीक है ना, it's a very simple example. ठीक है, you can explore these transitions. So moving to the advanced concept, as we have discussed कि हम cover करेंगे lecture outline में. First of those advanced concept is of composite states, ठीक है। composite states का simple मतलब ये है कि state which contains another other states, ठीक है ना। a state which contains nested states or sub states, ठीक है, हम उसको composite state कह सकते हैं, ठीक है ना। उसको आप स्टेट चार्ट डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना, कि एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर सब स्टेट्स मौजूद हैं, एक सब स्टेट हो या मल्टीपल सब स्टेट्स हो, कोई भी नेस्टेड स्टेट अगर मौजूद है तो उस आउटर स्टेट को हम क्या कह सकते हैं, एक कंपोजिट स्टेट कह सकते हैं। जैसे कि हमने क्या कहते हैं अपने हीटर या थर्मोस्टेट वाले एग्जांपल में बात की थी, वही एग्जांपल है दोबारा सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। हमारा थर्मोस्टेट आइडल स्टेट में है, ठीक है ना। when some event occur, let's say a function call occurs or some temperature reaches a certain threshold, ठीक है, तो it triggers the thermostat that the temperature is too hot. So from idle state it will transition to cooling state. Now cooling state is a composite state, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं कि कूलिंग स्टेट हैज बीन मॉडल्ड एज अ कंपोजिट स्टेट। विद इन द कूलिंग स्टेट सब स्टेट्स क्या है या नेस्टेड स्टेट्स क्या है, एक स्टार्टअप का स्टेट है कि जब वो कूलिंग स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो क्या कहते हैं कंप्रेसर ऑफ द थर्मोस्टेट पहले स्टार्टअप स्टेट में होगा, ठीक है ना, फिर वो रेडी स्टेट में आएगा, ठीक है। देन वो जब क्या कहते हैं द कंप्रेसर रनिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो दीज थ्री स्टार्ट स्टेट्स आर इंटरनल स्टेट्स विद इन दिस आउटर स्टेट, जिसको हम कूलिंग कह रहे हैं, ठीक है। जब भी थर्मोस्टेट आइडल से कूलिंग या किसी भी स्टेट से कूलिंग स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो विद इन कूलिंग स्टेट तो ये मल्टीपल फिर नेस्टेड स्टेट्स हैं, ठीक है, जो इस आउटर स्टेट या इस कंपोजिट स्टेट्स के अंदर मॉडल हो रहे हैं, ठीक है ना।
This is another example of a composite state. कि your book could be in a catalog state. In catalog state is its own order state or in stock state. ठीक है ना? This is a state which contains two सब states, two nested states. तो हम इसको एक composite state कह सकते हैं. ठीक है? This phone call example is a much richer example. तो अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा. देन विल स्किप थ्रू सम बेसिक एग्जांपल्स इन कमिंग स्लाइड्स. ठीक है? इस पे हम थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि ये दिस कंटेन्स एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो अब तक हमने बात की है. ठीक है? दिस इज अ बेसिकली लैंडलाइन फोन टेलीफोन. ठीक है? दिस इज अ स्टेट चार्ट डायग्राम फॉर अ लैंडलाइन telephone call. Okay, the telephone is in idle state. Let's say this is the initial. So when the end user picks up the receiver, ठीक है ना, on a landline telephone, ठीक है, वो idle state से क्या कहते हैं, the telephone object from idle state to transition to active state. Now you can see कि active state एक composite state. कंपोजिट स्टेट है. इसके अंदर नेस्टेड सब स्टेट्स, मल्टीपल नेस्टेड सब स्टेट्स. ठीक है? तो द मोमेंट के एंड यूजर पिक्स अप द रिसीवर ऑन लैंडलाइन टेलीफोन, तो लैंडलाइन दैट ऑब्जेक्ट ट्रांजिशंस फ्रॉम एक्टिव टू आइडल टू एक्टिव स्टेट. ठीक है ना? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्टार्ट वो दोबारा यूज हुआ है. एक यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ना कि आपका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल यहाँ से शुरू हो रहा है. यहाँ पे इस एग्जांपल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप एक स्टार्ट स्टेट लगा सकते हैं. ठीक है ना? स्टार्ट स्टेट एक यहाँ पे भी यूज हो रहा है. यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? अगर आपके पास किसी ऐसा एक कंपोजिट स्टेट हो जिसके अंदर मल्टीपल सब स्टेट्स हैं, अब जब मैं एक्टिव स्टेट में आऊंगा तो सबसे पहले कौन सा स्टेट एक्टिवेट होगा? इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, ठीक है ना, मॉडल करने के लिए you can use a start state again within this composite state. ठीक है? this start state mean कि जब रिसीवर क्या कहते हैं, जब एंड यूजर रिसीवर पिक करेगा तो टेलीफोन ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, एक्टिव स्टेट में चला जाएगा. एक्टिव स्टेट में जाएगा तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि एंड यूजर को एक डायल टोन सुनाई दे रहा होगा. ठीक है ना? तो मतलब ये है कि एक्टिव स्टेट में जो पहला सब स्टेट है या पहला नेस्टेड स्टेट है, ओके, कौन सा है? डायल टोन. ठीक है? अगर उसने 15 सेकंड तक वो डायल टोन सुनता रहा, उसने कुछ भी नहीं किया, तो टाइम आउट स्टेट में चला जाए और वो कोई मैसेज प्ले करेगा, कुछ सर्टेन चीज बोलेगा. ठीक है? अगर क्या कहते हैं डायल टोन स्टेट में है और उसने रिसीवर पिकअप किया और एक नंबर मिलाना शुरू कर दिया, तो जब वो पहला डिजिट डायल करेगा तो डायल टोन स्टेट से क्या कहते हैं टेलीफोन वुड क्या कहते हैं ट्रांजिशन टू डायलिंग स्टेट. ठीक है? अब वो टेलीफोन एक्टिव है और क्या कहते हैं कोई चीज क्या कहते हैं डायल कर रहा है एंड यूजर उसको. ठीक है? तो आप क्या कहते हैं डायल डिजिट, अब एन का यहाँ पे मतलब है कि एज अ पैरामीटर आप पास करें कोई सर्टेन नंबर को. 11 नंबर का फोन नंबर्स आते हैं, 7 के आते हैं, 8 के आते हैं, अकॉर्डिंगली जितने नंबर का आता है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट. ठीक है? तो यहाँ पे आप एक सेल्फ ट्रांजिशन भी देखते हैं. डायलिंग से दोबारा मतलब आप एक डिजिट तो नहीं मिलाएंगे ना, आप 7 मिलाएंगे, 8 मिलाएंगे, 11 मिलाएंगे, कोई सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट मिलाएंगे. जब तक कि वो नंबर कंप्लीट नहीं होता, देखो दिस इज अ गार्ड नोटेशन. दिस इज कंटिन्यूसली चेकिंग कि क्या नंबर कंप्लीट हो गया नहीं, क्या नंबर कंप्लीट हो गया नहीं. अगर हो गया है तो फिर क्या करो, फिर चेक करो कि नंबर वैलिड है या इनवैलिड है. अगर हुआ नहीं है तो वेट करो कि वो दूसरा डिजिट एंटर करे. अगर आपने नंबर डायल करने में 15 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले लिया तो यहाँ पे भी वो ट्रांजिशन करेगा टाइम आउट स्टेट, क्योंकि आपने नंबर मिलाने में इतना टाइम लगा दिया कि. ठीक है? अगर आपने क्या कहते हैं एक ऐसा कंप्लीट एक नंबर डायल कर दिया, 11 नंबर का, 11 डिजिट का अगर नंबर आता है तो आपने पूरे 11 नंबर डायल कर दिए. ठीक है? तो आई डोंट नो कि लैंडलाइन में कितने नंबर का आता है, मैं एक वो बता रहा हूँ. ठीक है? तो क्या कहते हैं डायलिंग से योर ऑब्जेक्ट विल ट्रांजिशन टू इनवैलिड स्टेट. ठीक है ना? आपने एक नंबर मिलाया जो गलत है. ठीक है? ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है? कंप्लीट है, सारे डिजिट पूरे हैं, लेकिन गलत है. तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन कब होगा? जब आपने डायल डायल डिजिट, जितने नंबर ऑफ डिजिट डायल किए थे वो इनवैलिड, तो ये गार्ड कंडीशन चेक कर रहा है कि वैलिड इनवैलिड. ठीक है? अगर इनवैलिड है तो इनवैलिड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा. और यहाँ पे डू में आप देख सकते हैं जो एक्टिविटी उसमें हमने वो दिया था कि एंट्री एग्जिट और डू. ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ वो डू डू पे वो दिखा रहा है. एंट्री एग्जिट दिखाने का वो नहीं है. डू एक बेहतर
मतलब यहाँ पे जो जरूरत के हिसाब से आ, उसने एक इंटरनल एक्टिविटी दिखाया हुआ है। वो इंटरनल एक्टिविटी क्या है कि जब वो इनवैलिड स्टेट में आएगा तो एक मैसेज प्ले करेगा। ऐसी बात है, वो एंड यूजर को बता रहा होगा कि आपका मिलाया हुआ नंबर मौजूद नहीं है। इस तरीके का कोई सर्टेन मैसेज प्ले करेगा जब वो डायलिंग स्टेट से इनवैलिड स्टेट में आएगा। ठीक है। अगर वो डायलिंग स्टेट में है और उसने नंबर कंप्लीट एंटर कर लिया और वो नंबर क्या है, वैलिड भी है, तो वो डायलिंग से कनेक्टिंग स्टेट में रिंग बजना शुरू हो जाए, रिंग जाना शुरू हो जाए। ठीक है ना। कनेक्टिंग में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो क्या कहते हैं, नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, रिंगिंग स्टेट में चला जाए। कनेक्टिंग स्टेट में चला जाएगा ना, नंबर मिलाने की कोशिश कर रहा। कनेक्टिंग में क्या कहते हैं, या बिजी होगा या किसी भी वजह से वो क्या कहते हैं कनेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो बिजी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा और आपको कोई दोबारा से एक सर्टेन टोन पे ले करेगा कि नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है, किसी दूसरी कॉल पे बिजी है, इस तरीके का। ठीक है। वरना क्या कहते हैं, कनेक्टिंग अगर सक्सेसफुली वो हो जाता है तो क्या कहते हैं, आपको कनेक्टिंग स्टेट से योर टेलीफोन ट्रांजिशन टू रिंगिंग स्टेट एंड एक सर्टेन रिंगटोन प्ले होना शुरू हो जाएगा, रिंग बज रही। ठीक है। रिंगिंग स्टेट से अगर अदर एंड पे कॉल पे होती है तो रिंगिंग से टॉकिंग स्टेट पे आपका वो ट्रांजिशन करें। ठीक है। अगर आप कॉल कॉल एंग अप करेंगे तो पिन स्टेट में जाएगा, मतलब एंग करेंगे वापस, एंग से वापस एंग अप स्टेट से टॉकिंग स्टेट पे आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। ठीक है ना। जब आप इसमें किसी भी स्टेट में से किसी भी स्टेट में, जब इस इन इंटरनल स्टेट में से किसी भी स्टेट में है और आपने रिसीवर दोबारा रख दिया, तो वो एक्टिव स्टेट से कंप्लीटली एक्टिव स्टेट से क्या कहते हैं, आइडल स्टेट में। अब आइदर क्या कहते हैं, आप डायल टोन स्टेट में थे, इनवैलिड स्टेट में थे, रिंगिंग स्टेट में थे, इस इंटरनल कंपोजिट स्टेट के अंदर जिस भी इंटरनल नेस्टेड स्टेट में थे, द मोमेंट यू पुट द रिसीवर बैक, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, एक्टिव स्टेट से, एक्टिव स्टेट के अंदर जो से भी स्टेट में हो वापस कहाँ पे जाएगा, आइडल स्टेट में चले। ठीक है। बाकी का, so the next advanced concept is of concurrent state. Concurrent state simply mean के कैसा state which contains, it's a composite state basically, which is divided into regions. ठीक है ना। A state which contains sub states, लेकिन which at least contains at least two such सब स्टेट्स जो क्या कहते हैं साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है। आसान अगर इसको करें तो कंकरेंट स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो सब स्टेट्स, जिसके जिसके सब स्टेट्स हैं, लेकिन ऐसे सब स्टेट्स हैं जो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है। एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं इन कंकरेंट फैशन। ठीक है। तो हम उस स्टेट को एक कंकरेंट स्टेट कहेंगे, उस आउटर स्टेट को एक कंकरेंट स्टेट कहेंगे। ठीक है ना। जिसके सब स्टेट्स हों, ठीक है ना, सिर्फ सब स्टेट होना एज ए कंपोजिट स्टेट, लेकिन ऐसे सब स्टेट्स हों जो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे बात की है कि ऐसा नहीं हो सकता कि डायलिंग टोन और क्या कहते हैं इनवैलिड स्टेट या क्या कहते हैं रिंग टोन साथ में बज रहे हो। ठीक है। तो एट अ टाइम इन क्या कहते हैं द ऑब्जेक्ट वुड बी एट वन सब स्टेट। ठीक है। सही है। ये सिर्फ फर्क है कि अगर आप कंकरेंट स्टेट उसको कहेंगे कि एक ऐसा स्टेट जिसके सब स्टेट्स हैं, लेकिन वो सब स्टेट्स क्या कहते हैं साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है। एट अ टाइम, एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कंकरेंट स्टेट्स इस तरह दिखा सकते हैं। कंकरेंट स्टेट्स आर एसेंशियली कंपोजिट स्टेट्स, मतलब एक ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके सब स्टेट्स है, सब नेस्टेड स्टेट्स हैं, लेकिन वो नेस्टेड स्टेट साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आप इस साइमल्टेनियस नेचर को शो करने के लिए अपने कंपोजिट स्टेट को रीजन में क्या कहते हैं डिवाइड करें। ये एक ऐसा कंपोजिट स्टेट है जिसके ये दो सब स्टेट्स हैं। इस सब स्टेट्स को मैंने एक रीजन में डिवाइड किया हुआ है। ये दोनों सब स्टेट एक के बाद एक नहीं, अब दिस बिकम्स अ कंकरेंट स्टेट नाउ। ठीक है। जब मैंने उसको रीजन में डिवाइड कर दिया, this region this division would mean कि this is a concurrent state
which means कि state 1 and state 2, sub state 1 and sub state 2 will execute simultaneously. ठीक है ना? While I'm in this composite state, these two substates will be executed simultaneously. ठीक है? तो concurrent states की अगर यहाँ पे एग्जांपल जो लिखी है इससे कि क्या कहते हैं, जब आप अपने गाड़ी में ब्रेक पेडल पे पाँव रखेंगे तो कार विल ट्रांजिशन फ्रॉम ड्राइविंग स्टेट और लेट्स से मूविंग फॉरवर्ड और मूविंग इन रिवर्स, किसी इस तरह के स्टेट से वो ट्रांजिशन करेगा अप्लाइंग ब्रेक स्टेट। लेकिन अप्लाइंग ब्रेक स्टेट हम कह रहे हैं कि कंकरेंट स्टेट है। दिस स्टेट वुड कंटेन टू सब स्टेट्स अप्लाइंग फ्रंट ब्रेक्स एंड अप्लाइंग रेयर ब्रेक्स। ठीक है, जब आप ब्रेक पेडल पे पाँव रखोगे तो गाड़ी के दो डिफरेंट सेट ऑफ ब्रेक्स, ठीक है ना। एक सेट ऑफ ब्रेक्स फ्रंट क्या कहते हैं टायर्स को कंट्रोल कर रहा है, एक सेट ऑफ ब्रेक्स रेयर टायर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास पेडल दो नहीं है कि आप फ्रंट ब्रेक क्या कहते हैं, एक एक ब्रेक पेडल फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेगा, एक ब्रेक पेडल आपके पास रेयर ब्रेक अप्लाई करेगा। ठीक है ना, आप एक ही ब्रेक पेडल है जिस पे आप पाँव रखेंगे तो वो साइमल्टेनियसली जो है दोनों सेट ऑफ ब्रेक्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो जब आपका ये क्या कहते हैं कार ऑब्जेक्ट लेट से ड्राइविंग से ट्रांजिशन करेगा अप्लाइंग ब्रेक स्टेट पे, अप्लाइंग ब्रेक स्टेट वुड हैव टू लिस्टेड स्टेट्स, जिसकी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ फोर्क, दिस इज अ जॉइंट, यू माइट बी फेमिलियर विद दीज नोटेशंस फ्रॉम एक्टिविटी डायग्राम्स जिसकी हमने प्रीवियसली बात की है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ब्रेक पेडल पे पाँव रखा तो कार ट्रांजिशन टू अप्लाइंग ब्रेक स्टेट, अप्लाइंग ब्रेक स्टेट पे ट्रांजिशन के दौरान, ठीक है ना, दो पैरेलल टास्क क्या कहते हैं। ठीक है, द कार इज वर्किंग इनटू टू पैरेलल टास्क बेसिकली। तो अप्लाइंग ब्रेक एक कंपोजिट स्टेट है जिसके अंदर दो सब स्टेट्स हैं, अप्लाइंग फ्रंट ब्रेक्स एंड अप्लाइंग रेयर ब्रेक्स, ये दो इसके सब स्टेट्स हैं। लेकिन इन दो सब स्टेट्स को हमने दो अलग रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, दो अलग रीजन में क्यों डिवाइड किया हुआ है? To sort of communicate or enforce that this is apart from being a composite state, this is also a concurrent state, क्योंकि ये दोनों जो सब स्टेट हैं ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं एट अ टाइम, एट द सेम टाइम ये दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं जब कहते हैं कार जो है वो अपनी ब्रेक स्टेट। ठीक है, इसका एक मोर सॉफ्टवेयर रेलेवेंट एग्जांपल ये हो सकता है, मतलब मल्टीपल एग्जांपल हो सकते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि आप किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स से, किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो जो आप देख रहे हैं लेट्स से कि इन इन प्ले स्टेट, प्लेइंग स्टेट, ठीक है ना, प्लेइंग स्टेट हम कह सकते हैं कि कंकरेंट एक स्टेट है। प्लेइंग स्टेट में साइमल्टेनियसली आपको विजुअल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, वीडियो इज बेसिकली सेट ऑफ इमेजेस रनिंग एट अ सर्टेन क्या कहते हैं स्पीड। ठीक है, तो आपको विजुअल नजर आ रहे हैं वीडियो, और आपको साथ साथ साइमल्टेनियसली साउंड भी आ रहा है। ठीक है, दो पैरेलल दो क्या कहते हैं कंपोजिट सॉरी सब स्टेट्स हैं, मतलब प्लेइंग प्लेइंग स्टेट के ये दो सब स्टेट्स हैं। जब प्लेइंग स्टेट में होगा वीडियो तो वीडियो के इमेजेस आपको विजुअल से नजर आएंगे और साउंड साउंड भी सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप साउंड रुक जाएगा तो वीडियो नजर आएगा, वीडियो रुक जाएगा तो साउंड नजर आ जाएगा। ठीक है, सही है। आई होप कि दिस एग्जांपल मेक सेंस। ठीक है, कंकरेंट एग्जांपल मतलब स्टेट्स को आप कंकरेंट स्टेट्स में रीजन्स में क्या कहते हैं मल्टीपल लीनियर पे स्टेट भी हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, हम डायरेक्टली अपने लास्ट सिनेरियो पे उस पे जमते हैं। ठीक है, यू कैन एक्सप्लोर दी बेसिक एग्जांपल्स जो फिर स्लाइड्स पे मौजूद हैं। ठीक है, सिनेरियोज ऑफ ये जो कि हम थ्रू आउट द वो कंटिन्यूसली
ये यूज करते हुए आते हैं एटीएम को एज अ केस स्टडी, जो तकरीबन हर डायग्राम और वीक के कंटेंट में हमने क्या कहते हैं एटीएम एप्लीकेशन अपने स्लाइड्स में मॉडल करने की कोशिश की है। तो कंटिन्यूइंग द ट्रेंड, ठीक है ना, दिस इज अ सिनेरियो रिगार्डिंग द एटीएम एप्लीकेशन, एटीएम एप्लीकेशन, ठीक है। तो यू कैन रीड आउट दीज रिक्वायरमेंट्स इन द सिनेरियो, मैं आपको वो इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ और इस पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ स्टेट मशीन और स्टेट चार्ट डायग्राम, ठीक है, मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन दिस सिनेरियो, ठीक है। आपका क्या कहते हैं इनिशियल स्टेट ऑफ एन एटीएम मशीन इज बैंक एटीएम इज ऑफ स्टेट, ठीक है ना, बंद है, शट डाउन, ठीक है। शट डाउन में अगर आप पावर बटन ऑन करेंगे, पावर बटन क्या कहते हैं ऑन करेंगे, तो टर्न ऑन करेंगे, पावर बटन पे क्लिक करेंगे, तो दैट्स एन इवेंट, ठीक है। पावर टर्निंग ऑन द पावर बटन इज एन इवेंट विच ट्रिगर्स अ ट्रांजिशन। तो आपका एटीएम एप्लीकेशन ऑफ स्टेट से ट्रांजिशन करके सेल्फ टेस्ट स्टेट में चला जाएगा। इट रन्स द सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अगर सेल्फ टेस्ट फेल होता है, ठीक है, अगर सेल्फ टेस्ट सक्सेस नहीं होता, तो फेलियर की सूरत में सेल्फ टेस्ट स्टेट से वो ट्रांजिशन करके किस स्टेट में जाएगा, आउट ऑफ सर्विस स्टेट में, ठीक है। आउट ऑफ सर्विस स्टेट में है और आपने स्विच ऑफ कर दिया तो वापस टर्न ऑफ स्टेट में आएगा, वरना वो आउट ऑफ ऑन रहेगा लेकिन आउट ऑफ सर्विस शो करेगा, ठीक है। अगर सेल्फ टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, ठीक है ना, सक्सेस सिनेरियो आया, फेलियर सिनेरियो नहीं आया, तो सेल्फ टेस्ट क्या कहते हैं स्टेट से वो ट्रांजिशन करेगा इन 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 द ऑन द इवेंट ऑफ सक्सेस, ठीक है, टू आइडल स्टेट, इट्स डूइंग नथिंग। स्विच ऑन है, अभी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना, सर्व नहीं कर रहा, कस्टमर को सर्व नहीं कर रहा, आइडल बैठा हुआ, ठीक है। सर्विसेज की रिक्वेस्ट आती है, सर्विसेज का इवेंट ट्रिगर होता है, तो ये आइडल से मेंटेनेंस स्टेट में जा सकता है, ठीक है। मेंटेनेंस स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, मेंटेनेंस से क्या कहते हैं, जब मेंटेनेंस कंप्लीट करेगा तो डायरेक्टली वापस आइडल स्टेट में नहीं आएगा, पहले सेल्फ टेस्ट टेस्ट में जाएगा कि मेंटेनेंस जो भी कैरी आउट किया हुआ अगर वो सब ठीक है, उसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए सेल्फ टेस्ट सक्सेस होता है तो वापस आइडल में जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस से फेलियर का अगर इवेंट ट्रिगर होता है तो आउट ऑफ सर्विस जाएगा, सर्विसेज से वापस यहाँ इस स्टेट में सर्विसेज रिक्वेस्ट होती है तो वापस मेंटेनेंस, ठीक है। आइडल स्टेट में है, किसी ने आके कार्ड इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना, एटीएम आइडल स्टेट में कुछ भी नहीं कर रहा, एटीएम क्या कहते हैं, कस्टमर आया उसने कार्ड इंसर्ट कर दिया, तो आइडल स्टेट से सर्विंग कस्टमर स्टेट में आया, दिस सर्विंग कस्टमर इज अ दिस सर्विंग कस्टमर इज अ कंपोजिट स्टेट, ठीक है, जिसकी हमने बात की है। तो इस कंपोजिट स्टेट के इसने दो क्या कहते हैं इंटरनल एक्टिविटीज भी यहाँ पे मॉडल किए हुए हैं, ठीक है। तो दो इंटरनल एक्टिविटीज क्या है, एंट्री और एग्जिट बताया, डू नहीं बताया, आप डू भी बता सकते थे। अपॉन एंटरिंग सर्विस सर्विंग कस्टमर, कार्ड रीडर जो है ना एक्टिवेट होगा, या कार्ड रीडर रीड्स द कार्ड इंसर्टेड, ठीक है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्विस, ठीक है, वो क्या करेगा, एजिट करेगा कार्ड, एग्जिट करेगा, इस ट्रांजिशन इस सर्विंग कस्टमर स्टेट से क्या कहते हैं ट्रांजिशन बैक टू आइडल के क्या कहते हैं ट्रांजिशन पॉइंट पे वो एग्जिट पॉइंट पे लीविंग बिफोर लीविंग दिस स्टेट, ठीक है, द कार्ड ऑफ वुड बी एजेक्टेड, ठीक है। तो दिस बेसिकली इज अ सर्विंग कस्टमर बेसिकली इज अ कंपोजिट स्टेट, इसके अंदर सब स्टेट्स आपके पास क्या है, ये एक कंकरेंट स्टेट नहीं है, सिर्फ एक कंपोजिट स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं तीन यहाँ पे शो किए हैं सब स्टेट्स एंड लिस्टेड स्टेट। तो फर्स्ट इज कस्टमर ऑथेंटिकेशन, पहले कस्टमर पिन एंटर करेगा, ठीक है ना, तो कस्टमर ऑथेंटिकेशन स्टेट में होगा जब कस्टमर पिन एंटर कर रहा है और ये उसको वेरीफाई कर रहा है, देन आप कस्टमर को एक मेन्यू शो करेगा कि भी आप क्या करना चाहते हो, तो ये सेलेक्टिंग ट्रांजिशन स्टेट में होगा, ठीक है ना, वो इन कस्टमर इज चूजिंग कि उसको क्या करना, ट्रांजेक्शन सेलेक्टिंग ट्रांजेक्शन स्टेट में होगा, ठीक है ना। तो when if when the customer makes up his mind कि उसको क्या करना है, विथड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, देखना है जो जो कौन सा ट्रांजेक्शन करना है,
तो इट क्या कहते हैं, ट्रांजिशंस टू ट्रांजैक्शन स्टेट, एंड देन वो क्या कहते हैं, कंप्लीट सर्विंग द कस्टमर, एजेक्ट्स द कार्ड, जैसे हमने यहाँ पे एग्जिट बनाया हुआ है, और वापस कहाँ पे जाएगा, आइडल स्टेट, है ना। या इस सर्विंग कस्टमर के दौरान अब्रप्टली कस्टमर ने इंटरप्ट करके कहा कि मुझे कैंसिल करना है अपना वो, ठीक है, तो वो कैंसल इवेंट के रिस्पॉन्स में भी सर्विंग कस्टमर से क्या कहते हैं, आइडल स्टेट पे वापस जाएगा। दो सूरतें हैं, या तो अब्रप्टली कैंसल इवेंट एक ट्रिगर होगा, या तो वो सर्विंग कंप्लीट करेगा देन ट्रिगर बैक्स टू आइडल स्टेट। ठीक है ना, आइडल स्टेट में है और आपने पावर बटन ऑफ कर दिया तो मूव बैक टू